Assalamu alaikum students. I am your teacher of the subject English, Miss Sana. I hope you are fine and are enjoying good health. So dear students, let's start our lecture of class 4. Please open your books from page number 30. Dear students, we have finished an adventurous story, Anansi and Five. Today we will discuss its exercise. And the category A is comprehension. Comprehension means understanding. Answer the following questions. What was the witch's name and why didn't she like it? विच का नेम क्या था और उसको अपना नेम पसंद क्यों नहीं था? And the answer is the witch's name was Five. She didn't like it because she thought that people had laughed when they heard her name. विच का नेम Five था और उसे इसी वजह से अपना नेम पसंद नहीं था क्योंकि जब कभी भी लोग सुनते थे कि उस विच का नेम Five है तो वो उसका मजाक उड़ाते थे, उसके नेम का मजाक उड़ाते थे. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ What was the witch doing in her garden? विच अपने गार्डन में क्या कर रही थी? And the answer is she was stirring her big cooking pot. वो अपने बड़े से कुकिंग पॉट में कुछ पका रही थी, कुछ स्टर कर रही थी, मूव कर रही थी. क्वेश्चन नंबर 3 इज What was the first animal that Anansi tricked? अनैंसी ने सबसे पहले कौन से एनिमल पे अपना ट्रिक प्ले किया था? एंड द आंसर इज The first animal that Anansi tricked was Mrs. Rabbit. Question number 4 is Which animals were not fooled by Anansi? और स्टूडेंट्स कौन से एनिमल से जो कि एनएनसी का विक्टिम नहीं बने थे? एंड द आंसर इज मिस फ्रॉग एंड मिसेस श्रियो वर नॉट फोल्ड बाय एनएनसी. मिस फ्रॉग और मिसेस श्रियो एनएनसी के विक्टिम नहीं बने थे. Question number 5 is Why did Anansi get angry with Mrs. Shrew? Anansi Mrs. Shrew से क्यों नाराज हो गया था? उसे क्यों Mrs. Shrew पे गुस्सा आया था? And the answer of this question is because she did not say number 5. क्योंकि Mrs. Shrew ने नंबर 5 नहीं बोला था. The second question of category A is fill in the blanks with suitable words from the story. Students, ये fill in the blanks हैं. इसमें आपने blanks को story में से ही word search करके write करना है. At first is Anansi was a trickster and he was having a difficult time. Next is Anansi peeked through a gap in the witch's fence. Next sentence is he imagined what delicious foods he would find. Next is a scurrying sound pulled Anansi from his daydream. Next sentence is she walked to the nearest mound and stood on it. And the last one is Anansi grinned and showed all his sharp teeth. Now move to next page. Category B, working with words. Question number 1 of this category is see if you can find the answer to the following descriptions. Unscramble these 4 words to use in the spaces. So students, here 4 words are given to you. These are scrambled words. You have to unscramble these 4 words to fill in the blanks. A person who treats people who are sick. जो पर्सन डिजीज पर्सन का, बीमार लोगों का इलाज करता है, he is a doctor. So this word will be converted to doctor.
D-O-C-T-O-R. Next one is a person who looks after people in a hospital is a nurse. हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स का देखभाल करती हैं वो नर्स होती हैं. This word will be changed into nurse. Next one is a person who helps children to learn is a teacher. This word is converted into teacher. A person who looks after people's teeth is a dentist. लोगों के टीथ को जो ट्रीटमेंट करते हैं वो डेंटिस्ट होता है. And this word will be converted into dentist. D-E-N-T-I-S-T. Question number 2 is, who are the following people? Write 3 or 4 sentences like those above about the people shown below. So students, यहाँ पे हमें 5 categories बताई गई हैं different professions की. We have to describe these people one by one. And the first one is a person who cleans up the street is a sweeper. A person who sells vegetable is a greengrocer. A person who mends the shoes is a cobbler. A person who carries passenger from one place to another in a taxi is a cab driver. A person who makes the security foolproof in a society is a watchman or guard. Question number 3 of this category is, the opposites of these words are all in the story. Find them. इन वर्ड्स के opposites स्टोरी में ही हैं, हमें उनको फाइंड करना है. Easy, difficult, nearest, farthest, unkind, kind, displeased, pleased, appeared, disappeared, love, hatred, low, above or high, light, dark, pleasant, unpleasant. Students, please write down the opposites of these words. Next activity is about punctuation. A full stop is a pause. It separates one sentence from another. Full stop सेंटेंस में एक पॉज की तरह होता है. ये एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से सेपरेट करता है. A comma is also a pause. It is used in the sentence to show a short pause. कोमा भी एक पास के तौर पे ही फंक्शन है इसका, लेकिन ये एक शॉर्ट पॉज को जाहिर करता है. अ सेमीकोलन लुक्स लाइक दिस. स्टूडेंट, सेमीकोलन ऐसा होता है, कोमा के ऊपर एक फुल स्टॉप होता है. इट शोज अस दैट देयर इज अ पॉज इन अ सेंटेंस. अ सेमीकोलन शोज अ पॉज लॉन्गर देन अ कोमा बट शॉर्टर देन अ फुल स्टॉप. स्टूडेंट, सेमीकोलन का फंक्शन है कि वो कॉमा से थोड़ा ज़्यादा लेकिन फुल स्टॉप से थोड़ा कम पॉज शो करता है, इसीलिए ये इन दोनों का सिंबल भी कैरी करता है, कॉमा और फुल स्टॉप का. क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्टिविटी वर्किंग विद वर्ड्स. सेपरेट दीज सेंटेंसेस यूजिंग सेमीकोलन्स, कॉमास एंड फुल स्टॉप्स. Don't forget to start each new sentence with the capital letter. So students, हमें यहाँ पर जो एक्टिविटी अब दी गई है उसमें हमने पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं. तो इसके लिए हमें जो गिवन सेंटेंसेस होते हैं वो सारे स्मॉल लेटर्स में ही होते हैं और हमें हर सेंटेंस के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना है और कोई अगर प्रॉपर नाउन है उसके भी फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना है और प्रॉपरली सेंटेंसेस में सेमीकोलन्स, कॉमास और फुल स्टॉप पुट करने हैं. सेंटेंस नंबर ए, ही शॉट एन एरो दे जस्ट वॉच्ड.
तो स्टूडेंट्स आप ही को अंडरलाइन करें और एज कैपिटल कर लें। एरो के बाद आप सेमीकोलन पुट करें एंड इस सेंटेंस के लास्ट पे वॉश्ड के बाद फुल स्टॉप पुट कर दें, क्योंकि यहाँ पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। ही शॉट एन एरो, उसने एक तीर चलाया। दे जस्ट वॉच्ड, और उन्होंने सिर्फ देखा। अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स एरो के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा पॉज लेना था, कॉमा से ज़्यादा लेकिन फुल स्टॉप से थोड़ा कम। दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पे सेमीकोलन पुट किया है। सेंटेंस बी, दे वर गुड आर्कर्स, ही वॉज गुड एट एवरीथिंग। तो स्टूडेंट्स दे को अंडरलाइन करके आप टी कैपिटल करके दे राइट करें, आर्कर्स के बाद सेमीकोलन पुट करें एंड एवरीथिंग के बाद फुल स्टॉप पुट करें। वो अच्छे तीर चलाने वाले थे लेकिन वो हर चीज़ में अच्छा था। तो स्टूडेंट्स एक सेंटेंस में हमें दो डिफरेंट लोगों के बारे में बताया गया है कि वो अच्छे तीर चलाने वाले थे, तीर कमान के स्किल्स में वो बहुत अच्छे थे, लेकिन दूसरे पर्सन की बात की जाती है कि वो हर चीज़ में बहुत परफेक्ट था, अच्छा था। मूव टू नेक्स्ट पेज। सेंटेंस सी, द डॉग डिड नॉट डाई, इट कुड नॉट बार्क और ईट। तो स्टूडेंट्स डी को अंडरलाइन करके आप टी कैपिटल करके राइट कर लें, डाई के बाद सेमीकोलन पुट करें एंड इस सेंटेंस के लास्ट पे ईट के बाद फुल स्टॉप पुट कर दें। डॉग मरा नहीं था, बस वो खा नहीं सकता था और बार्क नहीं कर सकता था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एक इस सेंटेंस में टू आइडियाज़ बताए हैं कि एक तो वो डॉग मरा नहीं था, बस वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस इज, आई हैव टू ब्रदर्स, नुमान एंड खालिद, ही हैज़ अ सिस्टर आयशा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप प्रॉपर नाउन जो हैं नुमान, खालिद एंड आयशा, इनके फर्स्ट लेटर्स को कैपिटल कर लें एंड उसके बाद स्टूडेंट्स आप ब्रदर्स के बाद कोमा पुट करें एंड खालिद के बाद सेमीकोलन पुट करें। सिमिलरली स्टूडेंट्स सिस्टर के बाद कोमा पुट करें एंड आयशा के बाद फुल स्टॉप पुट करें। मेरे दो भाई हैं नुमान और खालिद, जबकि उसकी एक बहन है आयशा। स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में दो डिफरेंट लोगों को यूज़ किया गया है, एक अपने ब्रदर्स के बारे में बता रहा है और दूसरा अपनी सिस्टर के बारे में बता रहा है, इसीलिए हम लोगों ने इन दो आइडियाज़ को सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन यूज़ किया है। लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस क्वेश्चन इज, वी लाइक टू स्विम एवरी डे, शी डज नॉट। स्टूडेंट्स आप वी को अंडरलाइन करें, इसका डब्ल्यू कैपिटल कर लें, डे के बाद सेमीकोलन पुट करें और इस सेंटेंस के लास्ट पे फुल स्टॉप पुट करें। हमें हर रोज़ स्विमिंग करना अच्छा लगता है, जबकि उसको स्विमिंग करना अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट कैटेगरी इज सी, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, एडवर्ब्स। स्टूडेंट्स प्लीज राइट डाउन द definition of adverbs. Adverbs are words which are used to increase the meaning of a verb. वर्ब के या आपकी सेंटेंस के मीनिंग को इन्हेंस करने के लिए, उसके मीनिंग में इजाफा करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उनको एडवर्ब्स कहते हैं। चूज सूटेबल एडवर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स टू ऐड टू द सेंटेंसेस गिवन बिलो। सो स्टूडेंट्स ये जो हमें यहाँ पे ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनके मीनिंग में इजाफा करने के लिए, इनके मीनिंग्स को क्वालिफाई करने के लिए इस बॉक्स में से हमें एडवर्ब्स को सिलेक्ट करना है। एंड दी नंबर 1 सेंटेंस इज, ही रोट अ लेटर टू हिज सिस्टर। उसने अपनी सिस्टर को लेटर लिखा। एंड यू कैन पुट एन एडवर्ब, यस्टरडे,
over here. Next sentence is he faced a tiger, comma, which was leaping at his throat. So students, आपने comma के बाद यहाँ पे अपना adverb put करना है. He faced the tiger bravely. उसने टाइगर का सामना बहुत ब्रेवली किया, बहुत हिम्मत के साथ उसका सामना किया, जो कि उसके थ्रोट के ऊपर जंप कर रहा था. नेक्स्ट वन इज द मैन विद द बैड लेग क्लाइम्ब द माउंटेन ट्रैक स्लोली. वो मैन जिसके लेग में कोई प्रॉब्लम था, वो इंजर्ड हुआ था, तो वो माउंटेन ट्रैक से बहुत आहिस्ता आहिस्ता आराम से नीचे आ रहा था. नेक्स्ट वन इज द एरो फ्लू थ्रू द एयर एट द टारगेट स्विफ्टली. एरो अपने टारगेट पे बहुत तेजी से हिट हुआ. स्विफ्टली मीन्स वेरी फास्ट. नेक्स्ट वन इज आई एम गोइंग टू माई फादर्स हाउस टुमारो. मैं कल अपने फादर के घर जा रहा हूँ. नेक्स्ट वन इज द मैन विद द बंडल शाउटेड एट हिज डंकी एंग्रली. आदमी जिसके पास कोई बंडल था, वो अपने डंकी पे शाउट कर रहा है, उस चीख रहा है, चिल्ला रहा है गुस्से से. Next one is the girl danced, comma, but did not sing at all. So students, we have to put an adverb over here. The girl danced gracefully. But did not sing at all. लेकिन वो गाना नहीं गा सकी. And the next one is the boy sped down the steep road on his cycle carefully. लड़का स्टीप रोड पर अपनी साइकिल को बड़े एहतियात के साथ चलाकर ला रहा था. नेक्स्ट एक्टिविटी इज राइटिंग क्वेश्चंस. चेंज द फॉलोइंग इनटू क्वेश्चंस. स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट एक्टिविटी ऑफ this exercise. Change the following into questions. हमने इन स्टेटमेंट्स को क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है. नंबर वन इज अ सेल्समैन कैन ट्रेवल फॉर. कैन अ सेल्समैन ट्रेवल फॉर, और इसके लास्ट में हम एक क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे. Next one is sodium benzoate has a particular smell. Has sodium benzoate a particular smell? And we have to put a question mark at the end of each sentence. Next one is the hotel's rooms are not expensive. And the question for this statement will be, are the hotel's rooms not expensive? Next one is the cash drawer is full of notes. Is the cash drawer full of notes? Next one is Sibi is a place in Balochistan. Is Sibi a place in Balochistan? Friends, please remember that we have to put question marks at the end of interrogative sentences. And the last sentence of this activity is the salesman's goods are offered at a discount. Are the salesman's goods offered at a discount? Students, this is the end of our lesson. Please learn this exercise and question answers by heart. Thank you. Take care of yourself. Allah Hafiz.